Okay, so in the last video we talked about the definition of a derivative और हमने देखा था कि how we can express the derivative as a limit. तो I kind of want to push forward on that idea and basically मैं सबसे पहले यहाँ पर एक curve बना दूँगा जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी. So this right here is that same curve. So I would like to draw my axes over here first. ठीक है, I know that this is my f of x and I know that this is my x. ठीक है, and I have a curve that looks something like this. ये मेरे पास f of x is equal to x square का curve है. ठीक है, and basically मैंने कहा था कि अगर मैंने इस curve में किसी भी point का slope find करना है, so let's say it's this point, इसका मैंने slope find करना है, तो I basically found out a method. और वो मेथड ये था कि मैंने एक लिमिट बना ली थी. मैंने कहा था कि यहाँ पर एक और पॉइंट होएगा जिसको मैं जो है वो मूव करके इस वाले पॉइंट के ऊपर ला रहा हूँ. ठीक है, एंड फॉर दैट आई बेसिकली क्रिएटेड अ लिमिट, और वो लिमिट जो थी वो बेसिकली कुछ इस तरह से थी. सो इट वाज बेसिकली द लिमिट ऑफ द स्लोप, और वो स्लोप जो था ना वो एक बड़े स्पेशल अंदाज में मैंने एक्सप्रेस किया था. नीचे उसमें आ रहा था डेल्टा एक्स, ऊपर मेरे पास आ रहा था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और फिर प्लस एफ ऑफ एक्स. माई बैड, दिस राइट हियर इज़ अ माइनस. और ये पूरी जो चीज़ थी ना हमने इसको फाइंड करना था एज डेल्टा एक्स अप्रोच्ड ज़ीरो, एंड हमने बेसिकली ये एक लिमिट फॉर्म बनाई थी, एक लिमिट की एक्सप्रेशन बनाई थी, और हमने कहा था कि ये चीज़ असल में क्या होती है, ये हमारा डी बाई डी एक्स होती है, या हमारा डेरिवेटिव होती है. And so I kind of want to show you guys how using this thing you can find out the slope of any point on this curve if you want. तो मैं इनफैक्ट करूँगा क्या, मैं करूँगा ये कि I have my f of x plus delta x, I have my f of x और यहाँ पर मेरे पास है डेल्टा x. तो मैं इन सारी चीज़ों को क्यों ना पहले इधर साइड पे अपने पास लिख लूँ. तो सबसे पहले मेरे पास जो f of x है वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली एक्स स्क्वायर्ड है ऊपर जो लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर्ड का कर्व है. उसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. अच्छा, ये क्या चीज़ है अब हमारे पास, वेल इस चीज़ को आपने क्या, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, तो आपके पास होल्ड ऑन. ओके, सो हमें पता है कि क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, तो हमारे पास जब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, so all we have to do is substitute this in place of x, and this is going to become x plus delta x ka squared. I hope that makes sense. That is just simple stuff out of your functions. Okay? And so what we're going to do is we have this thing. We're going to simplify this thing. And why are we trying to simplify this thing? It'll make sense in a second. So हमारे पास है limit of this entire thing. So this is f of x plus delta x minus f of x over delta x as delta x approaches 0. So I'm basically going to replace the f of x and f of delta x with these things that we found out over here. So this is going to look something like actually I'm going to do this over here. तो हम basically limit find out करना चाह रहे हैं of this entire thing. ये भी मैं इसके अंदर fill up करता हूँ as delta x approaches 0. और हमारे पास ये जो पूरी चीज़ है ना, we already found out कि f of x plus delta x is basically equal to this thing. तो मैं इस चीज़ को उठाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ. So I'm gonna write x plus delta x squared. Then I have this thing minus f of x. I know कि f of x is equal to x squared, so I'm just gonna write x squared over here. और नीचे obviously हमारे पास delta x है. And now we're gonna simplify this. ठीक है, we're gonna do some algebraic simplification.
So this thing right over here is gonna simplify into, this is I think this is a plus b whole squared, and we all know how to open this. So this is gonna be a squared, which is gonna be x squared plus 2ab. So this is gonna be plus 2 delta x times x plus delta x का squared, delta x का squared. ठीक है, and then we have, I hope I did this right, so that's a squared plus 2ab plus b squared. Okay, I think that is correct. And then we have minus x squared, और नीचे हमारे पास delta x आ जाएगा. Okay, so as you can see, this is a positive x squared, this is a negative x squared. ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी. उसके बाद हमारे पास इन दोनों टर्म्स के अंदर एक डेल्टा x है, सो वी कैन टेक दैट आउट एज आर कॉमन. और मैं एक्चुअली अब इस पूरी चीज़ को नहीं लिखूँगा, मैं बस इसको अब, या एक्चुअली लेट मी जस्ट राइट दिस, वुडंट टेक टू लॉन्ग. इसको डेल्टा x को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ दोनों जगह से. सो आई हैव डेल्टा x, या टेक डेल्टा x आउट कॉमन. अंदर मेरे पास रह गया 2x, यहाँ पर मेरे पास है डेल्टा x और 2x plus delta x. Okay, so now you can see this thing and this thing, they're both common. You can cancel out these two things, and now all you're left with is limit of this thing, which is 2x plus delta x as delta x approaches 0. And what you can see over here is कि हमारे पास ये जो फाइनल एक्सप्रेशन बनी है ना, इसमें ये जो डेल्टा x है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ गोना बी डेल्टा x अप्रोचेज ज़ीरो. तो यू एक्चुअली डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग. अगर आप चाहते हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है. लेकिन बहरहाल हम इस एंड प्रोडक्ट पे पहुंच गए, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई आप इस चीज़ को नहीं कर सकते. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, नाउ विद दिस थिंग, दिस सिंप्लीफाइड थिंग, आप बेसिकली किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड कर सकते हो, ठीक है. सो लेट्स से कि हमने इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना था, या एक्चुअली लेट मी ड्रॉ इट डाउन हियर. तो लेट्स से हमारे पास फिर से वही कर्व है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एंड हमारे पास इसी तरह एक स्क्वायर का कर्व जा रहा है, एक पैराबोला, एंड वी वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व at this point right here. And let's say कि ये जो है ना यहाँ पर ये 3 है, and we want to find this thing out. तो well, we basically found out कि हमारा जो slope है ना, that is coming out to be this thing, या हमारा जो derivative है ना, that is coming out to be this thing. तो we can say कि ये x है, ठीक है, that is our f of x. और हमने स्लोप किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, हमने बेसिकली स्लोप उस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है जहाँ पे जो हमारा x है दैट इज इक्वल टू 3. सो वी आर गोना डू दैट. सो वी आर गोना से स्लोप एट x equals 3. एंड नाउ आई विल शो यू गाइस हाउ दिस राइट हियर वर्क्स लाइक अ चार्म, क्योंकि आप पहले कर्व के ऊपर स्लोप नहीं फाइंड कर सकते थे, बट नाउ विद दिस थिंग यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू दैट. तो मैंने अपने डेरिवेटिव या स्लोप की इक्वेशन बना लिया, दैट इज बेसिकली लिमिट ऑफ दिस थिंग टू x प्लस डेल्टा x एज डेल्टा x अप्रोचेज 0. ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करी है, ये मेरा स्लोप, या स्लोप को हम डेरिवेटिव भी कह रहे होते हैं, d by dx, ये हमारा स्लोप या डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करी है. So let's solve this out. हमें स्लोप किस पॉइंट पर चाहिए, जहाँ पर x जो है ना that is 3. तो all we're gonna do is हम x की जगह पर 3 को पुट कर देंगे, and so let's find that out. So let's do that real quick. हम x की जगह 3 को पुट कर देंगे, so that is gonna be 3. डेल्टा x हमारा
ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो आप उसकी जगह बेशक ज़ीरो पुट कर दो, या आप उसको ना भी लिखो तो इट डजंट मैटर, बट आई एम गोना राइट डेल्टा एक्स ओवर हियर एनीवे. सो यू कैन बेसिकली काइंड ऑफ रीड दिस एज के ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस ज़ीरो हो रहा है क्योंकि डेल्टा एक्स इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो. तो दिस थिंग, व्हाट इज़ दिस गोना बी? वेल इट्स बेसिकली गोना बी, क्योंकि ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई, तो बेसिकली हमारा जो मैथ्स है ना वो सिर्फ ये वाला है. एंड सो दिस इज़ बेसिकली गोना बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज़ गोना बी 6. ठीक है, एंड दिस इज योर स्लोप या योर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपने कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट का स्लोप फाइंड करना सीख लिया. एंड लेट मी जस्ट डू another one for just practice purposes. तो फर्ज कर लो कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ स्लोप at x equals to let's say 5. ठीक है, एंड आई ऑलरेडी नो कि मेरा ये जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ठीक है, ये दिस इज गोना सिंप्लीफाई टू जस्ट 2x. ठीक है, सो आई कैन से कि माई डेरिवेटिव या माई स्लोप इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये हमेशा ज़ीरो हो जाया करेगी. सो व्हाट आई कैन से, सिंस आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई स्लोप एट x इज इक्वल टू 5, तो आई एम जस्ट गोना से 2 टाइम्स 5, x की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, and so this is going to be 10. So मुझे पता चल गया मेरा स्लोप क्या है at x is equal to 5, and that is 10.